everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Nogat, and this is me, Nikita Mehra. And today I am in my college. It's Saturday today and I was here for the assignment. So आप लोगों को समझ आ रहा होगा Saturday भी हम लोगों को आराम नहीं है, हम कॉलेज आते हैं काम करने. So I was just going to the hostel, but I am in the college NIFT Mumbai. So यहाँ पे अभी बहुत गर्मी हो रही है, तो मुझे ऐसे रोस्ट होते हुए घर नहीं जाना. So that's why I planned to sit in this place and make a video for all of you. And yes, I know situation test and whole of the GAT and CAT thing is over. So now the first question gets in your mind is कि हम लोग कौन से campus में जाने वाले हैं. So yes, obviously this video is about this. So let me give you an intro कि I am a student of semester 4 BF Tech, which is Bachelor of Fashion Technology, जिसका नाम अभी चेंज हुआ है apparel production के लिए. And the major question among everyone is right now कि हम लोगों को कौन सा, अगर हमने BDS लिया है तो हम लोग को कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए उसमें, और जिन लोगों ने BF Tech लिया है उनको ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं. And especially boys, let me clear it out. You have to do stitching and everything. Okay, you'll be stitching skirts, you'll be stitching dresses. So there is no gender wala cheez. And yes, we are also going to discuss the girls to the boys ratio and everything, like about what department would suit your personality. So yeah, now my top favorite departments are FC and FD, because I will give you reasons for everything I'm gonna say. So because I really love FC because I am doing IDM in it. Okay, so because I have learned something from it, because I'm not a person who was into the illustration things and into the Photoshop thing, into the everything, brochure design and virtual merchandising. So I was not into this, but this subject made me do it and I'm scoring good marks in it. And yes, to be very honest, at the starting it was really boring for me because you just have to do some designing and stuff in just your phone and laptop. I really don't like sitting at one place and doing my work. Because the other departments are really practical. अगर आप FC लेते हो तो आपको वैसा होना पड़ेगा. मतलब if you are a person who loves fashion illustrations and who loves software वाला सारा काम, you are very good with that virtual merchandising thing. और अगर आपको उसी को अपना main lead बनाना है, magazine design, brochure design, graphic designing, everything, if you are really good in it, then only take it, because else you have to learn it. And learning is थोड़ा डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली यहाँ पे आके, बिकॉज आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि यहाँ पे उतना अच्छे से सिखाया नहीं जाता कुछ चीज़ें. और टॉकिंग अबाउट द अनदर डिपार्टमेंट विच आई रिकमेंडेड इज़ FD. ठीक है, सो नाउ FD आप तभी लीजिए जब आपको या फिर कोट्योर में जाना है, या फिर आपको अपना डिज़ाइनिंग कुछ ब्रांड खोलना है, लेबल खोलना है, या फिर आपको स्टाइलिंग के पास जाना है. मतलब यू वांट टू बी अ स्टाइलिस्ट इन फ्यूचर. सो देन ओनली यू हैव टू टेक FD. एंड डिस्क्लेमर, FD में बहुत यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज I did the photo shoots and modeling for my seniors in my first semester. So they told me that they had made the collection of worth 1 lakh rupees. So 1 lakh was the mota खर्चा. ठीक है, traveling का and everything has its own other cost. So minimum लोगों का 50,000 तो लगा ही लगा था. So if you are ready to put this much of amount, and plus it has to look good, and if you are ready to dedicate your 4 years in sewing machine and sewing labs, so yes, definitely you should go for FD. And FD हर किसी से नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज हमारी ही क्लास में there is a subject called GCPM. So GC is garment construction and PM is pattern making. So where you make patterns and where you make patterns is PM, and where you make garments, where you stitch is garment construction labs. So half of the people are not interested in it, because yes, आपकी बहुत एनर्जी जाती है, पूरे दिन भर वहाँ पे बैठना पड़ता है. मेरा खुद को दिखना बंद हो गया आधा, ठीक है, GC लैब में बैठ के. बट आई लव क्रिएटिंग गारमेंट्स एंड दैट इज़ माई ओन पर्सनल चॉइस. दैट्स वाई आई एम सेइंग, इफ़ यू लव स्टिचिंग, इफ़ यू थिंक यू आर विलिंग टू डू इट, एंड यू थिंक कि आप 4 साल उसको ले पाओगे, तभी FD लेना. ठीक है, बिकॉज सी आई हैव सीन मैनी पीपल ड्रॉपिंग आउट ऑफ NIFT बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि बहुत काम होता है, बहुत ऐसे बोझ बनाने पड़ते हैं, मूव बोझ बनाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है. बट दी ओनली थिंग विच आई वॉन्टेड टू रिकमेंड इज़, if
you are ready to put everything of yours in to the stream which you are going to choose, so no one can stop you then. So yeah, about the only departments which I would now recommend to you all, and I will say कि yes, अब अगर आप हो इनमें से कि अगर आपको FC और FD अब अच्छा नहीं लग रहा तो आप अब कौन सा डिपार्टमेंट लोगे, बिकॉज द टॉप 2 जो मैंने बताया मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से यही दोनों हैं, बट इफ़ एल्स यू वांट गो देन गो फॉर KD एंड TD. ठीक है. नाउ KD इज़ होल knitwear. KD इज़ डिवाइडेड इनटू स्पोर्ट्स वेयर, लॉन्ज वेयर एंड एथलीजर वाला वही स्पोर्ट्स. ठीक है. सो यू हैव टू अगेन सिट इन द knitting labs, you have to crochet, hand crochet, you have to submit swatches of samples. So see, work is there in each and every department. The thing is you have to build up your interest कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. सो KD में आप तब जाओ जब आप knitting जानते हो या फिर आप crochet जानते हो या फिर आपको लगता है कि आप सीख पाएंगे डिपार्टमेंट में घुसने के बाद. सो बिकॉज हाफ ऑफ द पीपल हैव लर्नड इट हियर, दैट्स वाई यू जॉइन अ कॉलेज, राइट. बट if you are into it then you would be able to do it more efficiently and more productivity के साथ आप वो काम कर पाएंगे. सो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर आप हैंड क्रोशे एंड निटिंग वगैरह में आपको इंटरेस्ट है तो आप जाएँ उसमें. सब निट से याद करनी पड़ती है, निट के डायग्राम्स याद करने पड़ते हैं, आधे हमने भी पढ़े हैं. निटेड मतलब सी बिकॉज knitwear industry is growing day by day. Like I am in BF Tech, so we get to know about each and every department. मतलब हम लोगों का कॉम्बिनेशन कह लो एक चीज़ का. तो इन अ फर्स्ट सेमेस्टर ओनली वी लर्न अबाउट हाउ द इंडियन मार्केट इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वोवन्स टू knitted, बिकॉज knitted क्लॉथ इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड स्पोर्ट्स वेयर, एथलीजर वेयर तो सारा का सारा knit से ही बनता है. So knitwear has also a really good scope, plus the faculties are also good here in NIFT Mumbai. Rest of the campuses I don't know, but yeah, about this college I know everything. Okay, most of the things I would not say everything. So yeah, this was the thing which I wanted to say about KD. And मेरे फ्रेंड्स है KD में, वो रात तक बैठ के अभी knitting labs में ही बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं. So see, the only thing you can't escape. तभी मैं कह रही हूँ, if you are a person जिसको प्रैक्टिकल काम नहीं पसंद, just take FC में आपको बस बैठ के इलस्ट्रेशंस बनाने होंगे, डिज़ाइन करना होगा. वो भी ईजी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट ईजी, आई एम सेइंग अगर आपको वैसा वाला काम नहीं पसंद, मतलब ऑन फील्ड्स में जाके आपको काम करना नहीं पसंद, मतलब आपको गारमेंट बनाना नहीं पसंद, आपको निटिंग करना नहीं पसंद, आपको डाइंग एंड प्रिंटिंग करना नहीं पसंद, तो आप FC लीजिए. बिकॉज FC में एवरीथिंग इज़ ऑन स्क्रीन्स, और एल्स यू हैव टू क्रिएट वर्चुअल you have to create visual merchandising. मतलब when you enter a store, ठीक है, when you enter H&M or you enter Uniqlo or which you see first, मतलब how the mannequins have been placed, how the 50% off or how the Good Friday sale poster is kept, और how when the clothes are kept, मतलब क्या क्या props साथ में लगाए जाते हैं, वो सब आपको डिज़ाइन करना होता है. yes, उसके लिए आपको चिपकाना विपकाना, फेविकॉल एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू इट, laser cutting and all, you have to do it in FC. But yes, if you are a person who is not into knitting, printing, dyeing and all that thing, so आप FC ले सकते हैं. So now talking about TD, which is again a really good department I would say, because textile engineering is थोड़ा बहुत compared to TD here, because TD has a lot to learn, a lot. वोवन्स का सारा यहाँ पे हैंड लूम्स हैं, ऊपर वोवन लूम्स हैं, वीव करते हैं बच्चे यहाँ पे. इनका मतलब इनका ऐसे असाइनमेंट्स होते हैं इतना स्वॉचेस वीव करने का. सो अगेन दिस इज़ दी थिंग, TD हैज़ अ लॉट. प्रिंटिंग करना सिखाएंगे, ठीक है, डाइंग करना सिखाएंगे, हाउ टू डाई अ क्लॉथ, हाउ टू डाई अ फैब्रिक यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. देन यू विल लर्न हाउ टू प्रिंट. तो आपका प्रिंट में अब सब आता है. आपका हैंड प्रिंटिंग में ब्लॉक प्रिंट आएगा, स्क्रीन प्रिंट आएगा, देन डिजिटल प्रिंट्स आते हैं. तो डिजिटल प्रिंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी आता है. सपोज़ मैंने सपोज़ कुछ भी खोला, सॉफ्टवेयर खोला, ठीक है, अडोब फोटोशॉप खोला, मैंने एक डिज़ाइन प्रिंट क्रिएट किया. अब इफ़ आई वांट टू सी कि हाउ दैट प्रिंट इज़ गोना लुक ऑन ऐसा कुछ टी-शर्ट और शर्ट, सो देर आर अनदर सॉफ्टवेयर्स, तो हम उसमें उसको लगा के देखते हैं. ये काम मैंने भी किया है, बिकॉज आई एम सेइंग कि हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, ठीक है. BFT हैज़ टू डू एवरीथिंग, बट येस नॉट इन दैट डेप्थ, थोड़ा टच करते हैं हम हर चीज़ को. एंड या तो हम लोगों ने वो भी किया है, तो आपको वो सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं. तो TD इज़ ऑल्सो रियली नाइस, बट TD इज़ थोड़ा आई वुड से दिमाग वाला काम, ठीक है. TD एंड KD आर थोड़ा दिमाग वाला काम. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड लेदर डिज़ाइन तो है ही नहीं यहाँ पे, शायद अगले साल तक आ जाएगा. बट इन जिस भी डिपार्टमेंट्स में हैं, आई रियली डोंट नो अबाउट लेदर डिज़ाइन, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट. एंड
आते हैं एक्सेसरी डिज़ाइन में. एक्सेसरी डिज़ाइन कीप योर लास्ट प्रेफरेंस अनटिल एंड अनलेस यू आर अ पर्सन जिसका फैमिली बैकग्राउंड है, ज्वेलरी का बिज़नेस है या फिर किसी का भी बिज़नेस है, तो बैग्स का बिज़नेस है, तभी आप उसमें जाएं, वरना आप उसमें मत जाएं. बिकॉज आई वुड अगेन से एवरीथिंग इज़ अबाउट द एक्सपोजर. ठीक है, एक्सेसरी डिज़ाइन में आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, एटलीस्ट मुंबई वाली जगह पे. बिकॉज़ मैंने बहुत लोगों से ऐसे रिव्यू सुने हैं. लैब्स हैं, बहुत काम होता है यहाँ पे, बट आई रियली डोंट थिंक कि अगर आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एक्सेसरी डिज़ाइन में, एंड अगर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न टू गो फॉर इट, देन ओनली गो फॉर इट. मेरे सर पे अगर कोई पेड़ गिरा तो भाई कैमरा मैन नेवर डाइज. ठीक है, तो मैं वो मान के चल लेती हूँ. तो दिस वॉज ऑल अबाउट आई वांटेड टू से अबाउट द डिपार्टमेंट्स विच निफ्ट ऑफर्स. एंड येस, डिपार्टमेंट चूज़ करना तो एक चीज़ है हमारे लिए, बिकॉज यू हैव टू पुट द प्रेफरेंसेस. एंड अगेन द नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू से इज़ आपका रैंक आता है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. जनरल वालों को मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा रैंक चाहिए होता है निफ्ट में घुसने के लिए. बाकी ST/SC को तो बहुत आराम से मिल जाता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ द लॉज वर्क, राइट. सो प्लस द अनदर थिंग इज़ आपको कैंपस कौन सा घुसना है आपके ऊपर डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू मी, अगेन आई एम सेइंग द टॉप 5 कैंपसेस आर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गांधीनगर, चेन्नई, हैदराबाद. ये सारे के सारे कैंपसेस हैं जिसमें आप सबसे पहले जाने का सोचना. अब मैं वापस बोल देती हूँ, टॉप कैंपसेस इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है. टॉप कैंपस इसलिए नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग ही तुम लोगों को ऐसे भाई हीरे चांदी सोना मिल रहा है. नो, एवरी कॉलेज इज़ सेम. द ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ एक्सपोजर. ठीक है, एक्सपोजर इज़ द मेन थिंग जो होती है. बिकॉज सी आई एम स्टडिंग इन मुंबई. ठीक है, तो द थिंग इज़ कि अभी हम विज़िट पर गए थे, तो हम सूरत और दमन जा पाए थे बिकॉज वो हमारे पास था. वो भी हम बस में गए थे, बहुत ही घटिया बस थी. हम ऐसे उछल उछल के जा रहे थे, उसके बाद हम सब बीमार हुए थे, वो दूसरी चीज़ है. बट हम एटलीस्ट गए. ठीक है, जस्ट इमेजिन द पीपल हु आर एट कन्नौर, और जस्ट इमेजिन हु पीपल आर एट कौन सा शिलोंग वाला, वो कहाँ जाएंगे. मतलब दे ऑल्सो हैव प्लेसेस टू विजिट. आई एम नॉट सेइंग, बट ऑब्वियसली नॉट एज मच एज द पीपल ऑफ दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर. बिकॉज ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हब ही वहीं सेटअप हुआ है. मुंबई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बैंगलोर में हुआ है. तो वो इतना दूर का विज़िट नहीं करते, या फिर करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं. तो कोई लग रहा है आज मेरे सर पे एक पेड़ गिरेगा. बट द थिंग इज़ दिस, एक्सपोजर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको एक्सपोजर बनाना पसंद है, जिसको कॉन्टैक्ट्स बनाने पसंद है, जिसको लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर हो सकता है, या फिर मैं आई एम फॉर दिस थिंग, so definitely go for the top 7 or top 5 campuses. And yes, about the counseling process has 6 rounds guys, 6 rounds. हर बार झूठ बोलता है 2 राउंड के जितने बच्चे ही नहीं होते हैं. ठीक है, कैंपस ही नहीं भरते इनके पहले तो ये बात तो हमारे बीच रहनी चाहिए. इनके कैंपस नहीं भर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग 2 राउंड में कैसे ख़त्म करोगे तुम इतने सारे बच्चों को. ठीक है, तो बस बताने के लिए 2 राउंड बोलते ताकि सब लोग अपनी सीट लॉक कर लें डर के मारे, और उसके बाद ये लोग बाकी लोगों को सीट्स बांट सकें. सो दिस इज़ अ थिंग, इसको दिमाग में रखना. 2 राउंड पे कभी भी नहीं होता. अगर आपने एक बार सीट लॉक कर दी, आपकी सीट अनलॉक नहीं हो सकती. सो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी शायद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो. सो या, दिस इज़ ऑल अबाउट आई वांटेड टू से अबाउट ऑल दी स्ट्रीम्स और ऑल द डिपार्टमेंट्स विच निफ्ट ऑफर्स हियर. बट the choice is always going to be yours, and it also depends on your rank. ठीक है, so this is ignore जो आवाज़ आई. ठीक है, so we are not going to focus on to that before we get ranks. ठीक है, ranks also play a very important role in that, because rank के हिसाब से ही आपको stream choose करने का भी option मिलता है. So yeah, that is it for today's video. Hope you enjoyed it, and yeah, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Nikki Nogat. And yeah, bye bye and see you. And if you want me to post a counseling video soon, so do let me know, and I will also make a playlist now, because I got to know that many of you are getting confused कि कहाँ से क्या रेफ़र करना है. काउंसलिंग की वीडियो ज़रूर आएगी, नेक्स्ट वीक ही आएगी, बिकॉज थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं. बट येस, आई विल डेफिनेटली मेक टाइम अप फॉर दिस. सो या, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.